Good morning, everyone. Good morning, friends. So, everyone, please mute yourself. Okay, so welcome, everyone. And okay, I'll share the screen so that it is better for you to understand the things. So, welcome, everyone. And in this lecture, I will discuss about the strategy for EPFO, Assistant Provident Fund Commissioner, and AOEO exam. The notification is out, and we have around 4 months for the preparation. Okay, so इस सेशन में मैं स्पेशली फोकस करूंगा जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाउ शुड दे गो थ्रू दिस एग्जाम, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. सबसे पहले तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो आई जस्ट गिव 5 minutes फॉर बेसिक्स ऑफ द एग्जाम, कि एग्जाम का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? APFC EO AO का क्या इम्पोर्टेंस है ना? तो 5 minutes मैं इसके बारे में दूंगा आपको. Then I will directly come on to the syllabus. I will come to the PYQ pattern of 2023. We will see कि syllabus में से कौन कौन से areas they are asking and what should be the sources. How should you manage the timetable if you are preparing for 2026 for the civil service examination, or you are from the commerce background, management background. So then finally I will also share some details about what are the initiatives that we are planning. ठीक है, तो ये हमारा approach रहेगा इस सेशन में. So starting with the very basic thing, educational qualification. I mean ये बहुत basic चीज़ें हैं. I will just take 5 minutes to elaborate this because this is just a basic information aspect. After this I will start the strategy part. So आपको for this exam you have 2 posts basically. One is APFC, Assistant Provident Fund Commissioner, and another is ये APFC वाला हो गया आपका, and another is AOEO, right? And in both the cases bachelor's degree is enough. अगर आपके पास में BCom है, BTech है, BA है, any degree is enough. Similarly in APFC also bachelor's degree भी required है आपको, प्लस यहाँ पर desirable लिखा हुआ है. desirable का मतलब होता है कि अगर आपके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो it is not mandatory, right? That means you can qualify APFC without these qualification also, but those people who have these qualification will get some priority. तो ये कौन सी qualification है? This is diploma in commerce, so diploma in company law, labor law, public administration, right? Not mandatory. Clearly mentioned है कि mandatory नहीं है, right? Age limit 30 years है for the AOEO and 35 years for the second one. और ये जो आपकी कट ऑफ होगी वो 18 अगस्त 2025 को काउंट होगी. 4 कैटेगरीज लाइक OBC वी हैव 3 years रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 years, PWD के लिए 10 years लाइक दिस. ओके, तो ये हमारे पास रिलैक्सेशंस भी हैं एज वाइज. पे स्केल वाइज EPFO A ये आपका लेवल 8 में होता है और पैकेज अराउंड 11 to 12 लाख बनता है, यानी कि अच्छा खासा पैकेज है. स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी जॉब है. अगर आप सिविल सर्विस में बैकअप की तरह काम इसको देखना चाहते हैं तो इट इज़ गुड इनफ, राइट? और सबसे अच्छी बात यह है कि यू जस्ट हैव टू अपीयर इन 1 MCQ बेस्ड एग्जाम एंड देन 1 इंटरव्यू. दोनों ही UPSC कंडक्ट कराता है. UPSC इज़ द वेरी ऑथेंटिक बॉडी, सो दिस इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट एज ए बैकअप ऑप्शन, राइट? अगर 26 में आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है देन आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस एग्जाम बिकॉज आप इतना प्रिपेयर्ड नहीं होंगे.
आपने जीएस भी नहीं किया है, फिर आपका जो 26 का साइकिल है वो डीरेल हो जाएगा. बट इफ़ यू आर ऑलरेडी into this journey for maybe 2 years or so, right? आपने कम से कम मिनिमम एक अटेम्प्ट दिया हुआ है आपने प्रीलिम्स का, then I will suggest you can go through this choice. But again, that is completely your choice. It is not mandatory कि आपको EPFO एग्जाम देना है. But once you decide that I have to give EPFO exam, the strategy I will explain with proper evidence. उसके लिए आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए. एक सिंपल वे में किस तरह से एग्जाम को अप्रोच करना है उसके लिए हम लोग ओरिजिनल सोर्सेज देखेंगे और PYQs को एनालिसिस करेंगे, राइट? APFC में लेवल 10 होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू द सिविल सर्विसेज ग्रुप ए सर्विस. ये ग्रुप ए की सर्विस होती है. तो जो AO/EO है ये आपकी ग्रुप बी की सर्विस है और APFC ग्रुप ए की सर्विस है. AO/EO हुई प्रमोशन होकर के APFC में वो दे गेट APFC, दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स, राइट? तो दोनों का आपस में काफ़ी इंटरलिंक है, नेचर ऑफ जॉब भी सेम है, सिर्फ ये सीनियर और जूनियर है, मतलब ठीक है. ये जूनियर पोस्ट है AO/EO और APFC आपके सीनियर पोस्ट है. दोनों का वर्क प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, दोनों एक ही काम करते हैं लेकिन अलग अलग लेवल पर, राइट? पावर्स चेंज हो जाती हैं, फंक्शंस चेंज हो जाते हैं. और इसीलिए 2025 में UPSC हैज़ decided that it will not take 2 separate exams like it was done in 2023. 2023 में इन्होंने अलग अलग एग्जाम्स लिए थे, APFC का अलग था, AO/EO का अलग था. तो सेम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, सेम एस्पिरेंट, तो 2 एग्जाम का क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो अगर कोई पर्सन दोनों में एलिजिबल है तो एक एग्जाम दे करके वो दोनों में ही इंटरव्यू दे सकता है अगर कट ऑफ क्लियर होती है तो. नाउ ड्यूटीज क्या होती हैं? What kind of work profile they have? तो ड्यूटीज में दिस ड्यूटीज दे हैव मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन. ये मैंने नोटिफिकेशन से लिया है. तो ड्यूटीज इंक्लूड द एनफोर्समेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. क्यों? इनके पास काफ़ी सारी लेबर लॉ से पावर आती हैं. EPFO एक्ट है एंड देर आर मैनी अदर एक्ट्स फ्रॉम वेयर दे गेट द पावर्स. तो एनफोर्समेंट इज अ वेरी गुड पावर. रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर. मतलब दे हैव सम इंटरनल जॉब्स, दे हैव सम एक्सटर्नल जॉब्स. इंटरनल का मतलब है कि अपने खुद के इंटरनल कैश मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, पैसे को इन्वेस्ट करना. और एक्सटर्नल का मतलब है कि गोइंग ऑन द फील्ड एंड इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स, चेकिंग करना कि PF लोग पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इंडस्ट्रियल एरियाज में स्पेसिफिकली दे हैव द जुरिस्डिक्शन. तो आप जितने भी इंडस्ट्रियल हब्स होते हैं वहाँ पर उनकी एनफोर्समेंट पावर होती है. दे कैन गो टू द प्रीमाइसेस ऑफ द फैक्ट्रीज और द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड दे कैन चेक वेदर प्रोविडेंट फंड प्रोविजंस आर बीइंग यूटिलाइज्ड और नॉट, ठीक है? सो ये वर्क प्रोफाइल दोनों का कॉमन है. दोनों का वर्क प्रोफाइल कॉमन है लेकिन सीनियर जूनियर होते हैं. जैसे मैंने बताया, एक लेवल 8 पर है, एक लेवल 10 पर है. लेवल 10 सीनियर होता है APFC, लेवल 8 आपका जूनियर होता है AO/EO, राइट? सर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? तो देयर आर 2 स्टेजेस. स्टेज 1 इज रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे. इट विल हैव 300 मार्क्स, ठीक है? रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, 300 मार्क्स होंगे, 75% वेटेज होगी ओवरऑल सिलेक्शन में. और इंटरव्यू में यू हैव टू द टोटल वेटेज इज 100 मार्क्स, 25%. तो पहले आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे जो आपका 30 नवंबर 2025 को एक्सपेक्टेड है. और स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा जो कि आपका रिजल्ट आने के बाद होगा बेस्ड ऑन द कट ऑफ. एंड फाइनली बेस्ड ऑन दिस यू विल गेट सिलेक्शन, ठीक है? पेपर पेन बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ट्रेडिशनल एग्जाम होगा, UPSC टाइप का एग्जाम होगा, राइट? Mr. G Money, you have raised your hand. Can you please type in the chat box if you have any query? Okay. Now, as per the notification, and in the past year also we have seen the same thing. The test will be of 2 hours duration. 1-2 घंटे का टेस्ट होगा. There will be 120 questions because 300 marks का पेपर होता है. तो 120 questions होते हैं, 2.5 marks each. And all the questions carry equal marks. Objective type questions होते हैं, multiple choice type of questions होते हैं. You get the test paper in the 2 language, Hindi and English. And there will be
पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स 1/3। यूपीएससी का जो सिस्टम होता है वही सिस्टम यहाँ पे चलने वाला है। अगर आप मार्क नहीं करेंगे तो यू विल गेट नो पेनल्टी, फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। इंटरव्यू 25% वेटेज है, हिंदी इंग्लिश यू कैन अपीयर इन बोथ, राइट, शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही होगा, और 100 मार्क्स टोटल होता है। कट ऑफ कितना होता है सर? तो कट ऑफ एफ 2023 लेवल, सॉरी यहाँ पर गलती से 25 मेंशन्ड है, लेकिन ये 23 का है। तो 23 में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ वाज 178 कट ऑफ था। दैट मीन्स आउट ऑफ 300 अराउंड 60% हम कह सकते हैं। तो 60% पर जाके कट ऑफ आपकी रुकती है, बट यू शुड टारगेट 65%। आपको 200 मार्क्स टारगेट करने चाहिए। एंड फाइनल कट ऑफ वाज 257.5 विच वाज लाइक आउट ऑफ 400 257.5 स्कोर करना था आपको। देन कैटेगरी वाइज यू कैन सी 178, 156, 151, तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए वो अप्रोप्रिएटली चेंज हो जाता है। AOEO के लिए कट ऑफ 23 में, अगेन ये 23 का है, 25 का नहीं है, ये 138 था आउट ऑफ 300। उस टाइम पे 2 एग्जाम हुए थे। AOEO का कट ऑफ कम गया था बिकॉज दैट पेपर वाज फैक्चुअल, मोर फैक्चुअल, तो ज्यादा फैक्चुअल पेपर में कट ऑफ थोड़ा कम ही जाता है। अब हम आते हैं कि सर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को जो नोटिफिकेशन हमने 25 का देखा है, वहां पर दिस ईयर दे विल टेक कंबाइंड एग्जाम। तो दे आर सेइंग दिस इज कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम एंड द सिलेबस इज कॉमन फॉर बोथ APFC एंड AOEO, राइट। एंड दिस क्लासिफिकेशन आई हैव डन क्योंकि जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं दे आर कंपैरेटिवली बेटर इन दीज एरियाज। जनरल सब्जेक्ट्स में वो फिर भी ठीक होते हैं, लाइक कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, ये आपका हिस्ट्री से हो गया। डेवलपमेंट इश्यूज, इंडियन इकोनॉमी, ये आपका जीएस में आ ही जाता है। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पॉलिटी में आ जाता है। जनरल साइंस आप उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं करते हो, बट यहाँ पर थोड़ा आपको करना पड़ेगा। देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, even though you do in CSAT, but here the focus is more SSC type of orientation, right? स्पेशल सब्जेक्ट्स में आपको मेहनत करनी होगी। जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IR, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस एंड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो हम लोग अब देखते हैं कि यूपीएससी ने जो 23 में पेपर पूछा था वहाँ पर स्पेशली वी विल टेक द रेफरेंस ऑफ APFC। APFC का हम लेके चलेंगे। 2023 में जो APFC का पेपर उन्होंने पूछा था, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या थी, राइट। सो अगर हम देखें स्पेशल सब्जेक्ट्स में अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, राइट, इट हैज द वेटेज ऑफ 15 मार्क्स। ओके, समवन इज एनोनेटिंग ऑन द स्क्रीन, प्लीज डो नॉट डू दैट। अगर आप ऐसा करेंगे तो देन आई हैव टू स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। ये स्क्रीन मैंने आपके बेनिफिट के लिए शेयर की है। अगर आप इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे देन आई हैव टू स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन विच विल इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द सेशन। सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द सेशन, राइट। चलिए, तो अकाउंटेंसी से 10 क्वेश्चंस आते हैं, अकाउंटेंसी से 10 क्वेश्चंस आते हैं, ऑडिटिंग से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, इंश्योरेंस से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 120 में से 15 क्वेश्चंस अकाउंटेंसी से आएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी, ये तीनों मिला के एक ही हेडिंग में आते हैं और यहाँ से 20 क्वेश्चंस आते हैं। वेरी गुड, यू नो, मेजर चंक आप देखोगे तो काफ़ी यहाँ से सबसे हाईएस्ट पोर्शन आपका लेबर लॉ, IR और सोशल सिक्योरिटी से आता है, राइट। एंड वी विल सी सब्जेक्ट वाइज कि क्या सोर्सेज हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर IR, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इसके अंदर के टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। जनरल इंग्लिश अगेन कैरीज वेरी गुड इंपॉर्टेंस, 20 मार्क्स। जनरल इंग्लिश में ग्रामर हो गया, फिर ये भी आपका SSC बैंकिंग टाइप का होता है, UPSC टाइप का नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसको स्पेशल सब्जेक्ट में डाला है कि UPSC एस्पिरेंट को इस एरिया को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंग्लिश पोर्शन को, राइट। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हालांकि इन्होंने वर्ड यूज किया बेसिक, बट 23 में जो क्वेश्चंस थे दे वर डिफिकल्ट, 3 to 4 क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट। हमारे जो फैकल्टी हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की, आई वाज डिस्कसिंग विद हिम एंड ही टोल्ड के सर लिटरली वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन एक नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड का पर्सन सॉल्व नहीं कर सकते इजीली। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट करना पड़ेगा।
हम 3-4 क्वेश्चन के चक्कर में बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना पड़ के हम उन एरियाज को एड्रेस करें जो कंपैरेटिवली इजी टू कवर हैं, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 100% अटैम्प्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है। 23 में भी हमने APFO की प्रिपरेशन कराई थी, तो वहाँ पर भी लोगों ने 100 के आसपास ही अटैम्प्ट किए थे, 100, 105 है ना, 110 तक कोई कोई गया था, बाकी 100, 105 ही मैक्सिमम अटैम्प्ट था। हमने टेलीग्राम चैनल पे वो पोल भी डाला हुआ है, आप देख भी सकते हैं। और मैक्सिमम जो लोगों ने डिफिकल्टी फेस की थी वो फर्स्ट 4 एरियाज में डिफिकल्टी फेस की थी, क्योंकि ये एरियाज हमने ट्रेडिशनली प्रिपेयर नहीं किए हुए होते, बट द वेटेज इज मोर देन 50%। 65 मार्क्स के ये एरियाज हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा पेपर यहीं से आता है, लेकिन आप इसको सही से प्रिपेयर करें तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। जनरल सब्जेक्ट में यू हैव आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, तो यहाँ पर भी एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री दोनों आती है। एंड फॉर दिस वी हैव ए सेपरेट सेशन। हमारे शेखर सर हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल के टीचर हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एक सेशन लिया है, तो दैट सेशन यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम एंड ऑन द यूट्यूब, ठीक है। उसका PYQ एनालिसिस भी वो एक सेशन में करेंगे, वो भी आप अटेंड कर लीजिएगा। देन वी हैव डेवलपमेंट इशूज, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, 3 क्वेश्चंस, यानी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है 3 क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस भी नहीं है, बहुत जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन पॉपुलेशन से है, एक क्वेश्चन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से है, एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से है। सो ये क्या करना है आपको कि ये कुछ एरियाज हैं, एक एक चैप्टर के बराबर है बस ये, यानी कि एक एक टॉपिक के बराबर है, 2-2 घंटे में ये कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पूरी इकोनॉमी आपको पढ़नी है, कोर इकोनॉमिक्स यहाँ पर नहीं आती है, जो हम समझते हैं कि कोर इकोनॉमिक्स होती है वो यहाँ पर नहीं आती है, तो हमें उसकी ज़्यादा पीछे नहीं भागना है। अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो, जस्ट गो बैक टू द 2023 पैटर्न। 2023 का जो पैटर्न है, आई थिंक दैट इज द बेसिक स्टैंडर्ड। तो बोथ APFC एंड EO पेपर आई विल पोस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल। आप उसको बार बार गो थ्रू कीजिए और आपकी खुद की बैकग्राउंड से उसको एनालाइज कीजिए कि मेरे लिए कौन सा एरिया डिफिकल्ट है, ठीक है। बिकॉज मेरे हिसाब से UPSC का जो खुद का पेपर होता है ना, उससे बेस्ट कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। जनरल साइंस हैज ए गुड वेटेज, 10 क्वेश्चंस, और जनरल साइंस में आपको ये फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक एरिया है जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज कंपैरेटिवली इजी फॉर द UPSC एस्पिरेंट। आपने लक्ष्मीकांत जो पढ़ी है वो सफिशिएंट है इसके लिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ पर थोड़ा सा SSC टाइप का ओरिएंटेशन है, तो थोड़ा सा आप PYQ देख करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वी विल हैव ए स्ट्रेटजी सेशन फॉर दिस ऑल्सो, एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल हैव द लेक्चर ऑल्सो, ठीक है, उसकी बहुत चिंता मत कीजिए। करंट इवेंट्स में अगेन दीज आर फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे 2023 में ब्रिक्स पे क्वेश्चन आ गया था, ब्रिक्स समिट चल रही थी उस समय पे, G20 पे क्वेश्चन आ गया था, कोई पॉपुलर इवेंट है उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो बहुत ही ऑब्वियस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, या फिर बहुत डिफिकल्ट होंगे तो देन यू हैव टू लीव दोस क्वेश्चंस। I hope you got the fair idea of the subject-wise classification of the 2023. Similarly, we have given the analysis of 2023 APFC, 2023 AOEO, 2020 में भी AOEO का हुआ था, 15 में APFC का हुआ था। तो ये हमने ईयर वाइज सब ये क्लासिफिकेशंस दे दिए हैं। ये एनालिसिस आई विल पोस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट ब्रॉडली इन माई अंडरस्टैंडिंग दोनों का जो पोर्शन अगर हम देखें, 23 का जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है दैट इज मच बेटर, और 23 में हम यही देख पा रहे हैं कि लाइक स्पेशल सब्जेक्ट एंड नॉन स्पेशल सब्जेक्ट बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज, जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा भी है, थोड़ा बहुत, ठीक है, बट ऑलमोस्ट बराबर सही है, मतलब, ठीक है। नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी से यू गेट 10 to 12 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड दीज आर द टॉपिक लिस्ट। इफ यू कम फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, अदरवाइज यू कैन रेफर टू दिस टॉपिक, यू कैन प्रिपेयर दिस टॉपिक। और अकाउंटेंसी के लिए जो लेवल है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, दैट इज इजी टू मॉडरेट। इजी ही कहोगे, अगर इफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड देन इट इज इजी, फॉर नॉन कॉमर्स इट कैन बी इजी टू मॉडरेट। व्हाट इज द सोर्स? सोर्स क्या होनी चाहिए सर इसके लिए? तो सोर्स में यू शुड फॉलो द बेसिक सोर्स। इनफैक्ट यस, बेसिक सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। क्लास 11th NCERT, देयर आर 2 NCERTs, part 1 part 2, आई हैव पोस्टेड ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। इफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड तब तो आपकी बल्ले बल्ले,
आप उसको एक बार पढ़ो न्यूज़पेपर की तरह, आपको सब चीज़ें याद आ जाएंगी आपको। तो आपके लिए एक केक वॉक है, आपका पढ़ के एक बार क्वेश्चन देखोगे, यू विल फाइंड कि ठीक है, हो गया, डन, खत्म। बट इफ़ यू आर फ्रॉम द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, देन यू हैव टू गो थ्रू दैट एनसीईआरटी एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, उसको 2-3 बार अच्छे से देखो, देन सी द पीवाईक्यू, सोल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू अटेंड सम क्लासेस, ठीक है। तो इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर पाओ, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। बेसिक्स आपको वहीं से क्लियर होंगे। अलॉन्ग विद दिस वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद द अकाउंटिंग मटेरियल। अकाउंटिंग के लिए हम लोग एक बहुत अच्छा मटेरियल रिलीज करने वाले हैं विद इन कपल ऑफ डेज, वेयर वी विल हैव रेलिवेंट बेसिक्स ऑल्सो। एनसीईआरटी में जो चीज़ें कवर है वो भी हम वहाँ पर कुछ चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, एंड ऑल्सो वी विल ट्रेस द कॉन्सेप्ट विद द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से इसको लिंक करेंगे, चैप्टर एंड पे पीवाईक्यूज होंगे, कॉन्सेप्ट को हम पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंगली वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि जो एरिया पीवाईक्यू में ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे एंड अकॉर्डिंगली। तो 2023 में जो हमारा मटेरियल था उसको हमने अपडेट किया है, पूरी तरह से रिवैम्प किया है एज पर द 2023 पैटर्न, क्योंकि 2023 में जो हमने मटेरियल प्रिपेयर किया था दैट वाज बेस्ड ऑन द 2017-2020 पैटर्न, और 23 में जो पैटर्न हुआ वहाँ पर उन्होंने कुछ एरियाज़ को ज़्यादा वेटेज दिया है, तो हमने वो एरियाज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ़ यू कम बैक टू द ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग में यू गेट 2 to 3 क्वेश्चंस, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडिट। If you just go through the basics of the audit 2-3 times, you can attempt these questions, right? अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बीकॉम आपने किया हुआ है, तो आपके लिए तो केक वॉक है, मतलब आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें एक बार फिर से बस रिफ्रेश करनी है। इंश्योरेंस में भी यू जस्ट नीड वेरी स्मॉल brief because you get only 2 questions, concept, types, components, general principles, policy, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सो हमने क्या किया इस बार 2025 के लिए, वी हैव कंबाइंड accountancy, auditing and insurance into a single book. This book will be available very soon. आप इस बुक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक से ही 15 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। लिटरली आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक इट श्योर कि ये बुक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव हो। नाउ कमिंग टू द लेबर लॉज, तो लेबर लॉज में दीज आर द लिस्ट ऑफ लॉज विच आर कमिंग इन द पीवाईक्यू। तो ये हमने लिस्ट बनाई है, कहाँ से बनाई है, 2023 में और 2020 में, और उससे पहले भी जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हमने लिस्ट डाउन किया है कि या कौन कौन से एक्ट हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज देर आर सो मैनी बुक्स ऑफ लेबर लॉ, लेकिन कोई सिंगल बुक उसको कवर नहीं कर सकती, बिकॉज देर आर आस्किंग सो मैनी लॉज। तो सारे लॉज की लिस्टिंग हमने यहाँ पे की है, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। यहाँ पर कॉमर्स ऑप्शनल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि ट्रेड यूनियन एक्ट हम लोगों ने कवर किया होता है अपने ऑप्शनल में, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी हमने कवर किया होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी। तो आपके लिए रिलीफ है कि ऑप्शनल में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते ही हैं। तो 11 एक्ट्स ये हो गए और 6 एक्ट्स ये हो गए, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, माइंस एक्ट एंड प्लांटेशन लेबर एक्ट। सो 11 + 6 टोटल 17 एक्ट से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लेबर लॉ में। लेबर लॉ के साथ में सोशल सिक्योरिटी भी एक टॉपिक है। सोशल सिक्योरिटी बेसिकली लेबर लॉ के अंदर ही जो द लॉज विच आर रेलिवेंट फॉर द सोशल सिक्योरिटी, दोज लॉज दे आर आस्किंग। नाउ यू माइट हैव ए क्वेश्चन कि सर डू वी नीड टू गो थ्रू द न्यू कोड्स, न्यू लेबर कोड्स। तो 4 लेबर कोड्स हमारे 2020 ऑनवर्ड्स रिलीज हुए थे, अभी वो सारे इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। 23 के जो क्वेश्चंस थे वो भी ओल्ड वाले एक्ट से थे, और अभी भी जो क्वेश्चंस आएंगे विल बी फ्रॉम द ओल्ड एक्ट, बट इन आवर मटेरियल वी विल इंक्लूड न्यू कोड्स ऑल्सो। तो आप ओल्ड वाले सारे एक्ट करके जाएंगे, न्यू वाले कोड भी करके जाएंगे। हालांकि चांसेस हैं कि वो ओल्ड वाले एक्ट ही पूछेंगे आपसे, ठीक है, जो हमने लिस्ट बना के दी है। थर्ड एरिया इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। जो यहाँ पर वर्ड यूज होते हैं वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेकंड होता है लेबर लॉ, थर्ड होता है सोशल सिक्योरिटी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो पोर्शन है, दिस इज बेसिकली विच डील्स विद द बेसिक्स ऑफ IR, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स, लेबर वेलफेयर, वेजेस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड ILO। तो ये टॉपिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी एक रेलिवेंट टॉपिक है। 2023 में उन्होंने क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा था,
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। 2020 में, 2017 में दे आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया। तो हमें ये भी एरिया अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। 23 में नहीं पूछा था इंडस्ट्रियल रिलेशन, 23 में सिर्फ उन्होंने लेबर लॉ पूछे थे, बट प्रीवियस ईयर्स में दे हैव आस्क्ड दिस एरियाज, दैट इज व्हाई वी शुड डू दिस एरियाज इन ए गुड मैनर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज माई एक्सपर्टीज, कॉमर्स ऑप्शन में मैं पढ़ाता ही हूँ, तो आई विल डील विद दिस एरिया। सोर्सेज क्या होने चाहिए सर? तो देखिए, देयर आर सो मेनी बुक्स, ये टोटल 8 बुक्स हैं जो मैं रेफर करता हूँ बिकॉज आई टीच कॉमर्स ऑप्शनल। तो ये सारी हमारी IR लेबर लॉ की बुक्स होती हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जिसमें से पियाली घोष इज समथिंग विच इज वेरी गुड बुक। पियाली घोष भी आप ले सकते हैं, या S.C. श्रीवास्तव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी इसमें से एक बुक ले लीजिए। अगर आपको ये मन है कि सर मुझे अच्छे से पढ़ना है, कोई बुक में से, टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, कोई एक सिंगल बुक ले सकते हैं। अदरवाइज हम आपके लिए मटेरियल लेकर आ रहे हैं 2025 के लिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में वी विल डील विद द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड सो ऑन। एंड पार्ट 2 में वी विल डील विद द ऑल अदर लेबर लॉज, जो हमारे टोटल 17 लेबर लॉज हैं। सो हम वहाँ पर PYQ ट्रेसिंग भी करेंगे, PYQ से लिंक भी करेंगे। रेलिवेंट जगह पे आपको PYQ लिखा मिलेगा, ताकि आपको और अटेंटिव तरीके से फोकस कर सको कि भाई ये वाला एरिया PYQ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि PYQ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको साथ में 2023 का पेपर डील करूंगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश जो होती है वो आपकी SSC टाइप के एग्जाम्स के लेवल की होती है। UPSC वाले जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वाली इंग्लिश नहीं आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, देर आर मैनी बुक्स, स्पेशली अरिहंत की बुक आती है, आप वो बाय कर सकते हैं। अरिहंत की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक आती है, वो बाय कर सकते हैं। हमारा डायडेमियस का मटेरियल भी रिलीज होगा, बिकॉज वी हैव इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल फैकल्टी श्रीजेश सर, हु विल बी टीचिंग इंग्लिश ऑल्सो, जहाँ जो लेक्चर्स भी लेंगे इंग्लिश के। ऑलरेडी उन्होंने 2-3 लेक्चर दे लिए हैं इस बार के लिए, और हमारा मटेरियल अगस्त एंड तक इंग्लिश का आएगा, और उससे पहले लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। अराउंड 11-12 अगस्त से इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, विच विल बी टेकन बाय द श्रीजेश सर, हु इज द इंग्लिश ऑप्शनल लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल फैकल्टी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस का मैटर है ना, इसलिए ये मैं मानता हूं कि इंग्लिश इज लो हैंगिंग फ्रूट, जहां पे 20 में से 15 आपके एक्यूरेट होने चाहिए। लेबर लॉ इज अगेन ए लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि लेबर लॉ में फैक्चुअल चीजें आती हैं, रट के जाओ और करके आओ। 15 में से 15 क्वेश्चन करके आओ। अकाउंटेंसी में 15 में से 15 क्वेश्चन करके आओ, क्योंकि यहां पर ज्यादा एम्बिग्यूटी नहीं है। लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, इंग्लिश, ये 3 एरिया ऐसे हैं जहां पर ज्यादा एम्बिग्यूटी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि 20 इंग्लिश में आते हैं, 20 लेबर लॉ में आते हैं, 15 अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस में आते हैं। तो आपके 55 क्वेश्चंस तो यहीं से पक्के हो गए। 55 क्वेश्चंस अगर आपके हो गए तो यू विल हैव सॉलिड बैकअप। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर पढ़ना रेलिवेंट है, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना रिसोर्स दिया हुआ है, और आपको सारे क्वेश्चंस वहां से मिलेंगे। मैं कह रहा हूं चलो 100% नहीं तो 90% तो करके आओ। अगर आप कंपेयर करो, इफ द करंट अफेयर्स यू कंपेयर विद द पॉलिटी और यू कंपेयर विद द जनरल साइंस, वहां पर एरिया काफी ब्रॉड एरिया है और क्वेश्चंस कम आते हैं। जनरल साइंस में आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, पॉलिटी में आपको पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ना होगा, फिर भी वो हो सकता है कि थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन डाल दें आपको। ठीक है, तो अकाउंटेंसी, लेबर लॉ और इंग्लिश, ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। कंप्यूटर में भी मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है, बिकॉज कंप्यूटर अगेन इज नॉट सो इजी, ओके, एज पर द 2023 पैटर्न। तो इंग्लिश को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, इसलिए इंग्लिश की क्लासेस हम लगवा रहे हैं, इंग्लिश का मटेरियल भी रिलीज करवा रहे हैं, एंड बाय द इंग्लिश फैकल्टी, इंग्लिश लिटरेचर जो ऑप्शनल है उसके फैकल्टी हैं, तो ही इज मोस्ट क्रेडिबल पर्सन फॉर दिस पर्पस। हिस्ट्री से 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे ना अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीसीएस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते। और हिस्ट्री के लिए भी एक स्ट्रेटजी सेशन शेखर सर ने लिया है, जो आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे मिल जाएगा, अभी पोस्ट हो जाएगा कल तक। सो हियर ऑल्सो यू विल हैव टू रीड ल्यूसेंट और अरिहंत। यहाँ पर जो फैक्चुअल चीजें है ना उसको रट मारिए,
पढ़िए, रट मारिए, ठीक है। हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज में आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, PYQs और टेस्ट सीरीज के थ्रू, ठीक है। लेकिन बुक अगर आपको मैं बात करूं, ल्यूसेंट पढ़िए, अरिहंत पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, कोई और मतलब ना तो शॉर्टकट है ना तो कोई लॉन्ग कट है। ऑथेंटिक सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, उठाइए और पढ़िए उसको, ठीक है। करंट इवेंट्स के लिए 6 to 9 क्वेश्चंस आते हैं, SSC लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वो मतलब 365 टाइप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो SSC टाइप की या कोई स्टेट लेवल टाइप की जो मैगजीन होती है वो फॉलो कर सकते हो, और इसको एग्जाम से 1 महीने पहले फॉलो कीजिएगा, अभी मत करो इसको, क्योंकि पढ़ोगे भूल जाओगे। अभी क्या करना है आपको, जो स्पेशल सब्जेक्ट वाले एरियाज है वो करना है, और GS वाले एरिया में जनरल साइंस आपको पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी में 5 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, लक्ष्मीकांत से आते हैं, UPSC लेवल के आते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि चलो आप पॉलिटी में इजीली मैनेज कर सकते हो। जनरल साइंस में 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं, ल्यूसेंट अरिहंत यहाँ पे काम आएगी आपको, और 9th और 10th NCERT काम आएंगे आपको। जनरल साइंस भी आपका साइंस एंड टेक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप UPSC बैकग्राउंड से है ना, तो आपको बहुत एक्सट्रीम एज नहीं मिलने वाली, बट हाँ अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपको बहुत फायदा होने वाला है। कंप्यूटर में देयर आर मैनी बुक्स, ये अरिहंत की बुक है, ये भी एक रेलिवेंट बुक है, लेकिन सारे क्वेश्चन फिर भी नहीं हो पाएंगे। और मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ, फेक बात करके कोई फायदा नहीं है। 2 क्वेश्चन के चक्कर में, 3 क्वेश्चन के चक्कर में आप कंप्यूटर साइंस की तो पूरी बुक नहीं पढ़ोगे, है ना। उसके बदले में आप बेटर है कि लेवल लो पढ़ो, अकाउंटेंसी पढ़ो, उससे बेटर है कि आप इंग्लिश को अच्छे से करो, क्योंकि वो मैनेजेबल है, वहाँ पर डिफिकल्टी लेवल उतना एक्सट्रीम नहीं होता। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी SSC बैंकिंग टाइप में है, तो यहाँ पर कोई बुक, बेसिक बुक ले लीजिए आप, और बेसिक टाइप के लेक्चर देख लीजिए आप, जैसे कि RS अग्रवाल हो गया या अरुण शर्मा हो गया। जो बेसिक बुक है ना उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको अच्छे से कीजिए, और फिर हम लोग टेस्ट सीरीज निकालेंगे, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, 26 में जो लोग अपेयर करना चाहते हैं UPSC सिविल सर्विसेज एंड दे आर फेसिंग अ डिलेमा कि सर शुड वी इन्वेस्ट अ टाइम फॉर द EPFO, तो मैं कहूँगा कि अगर आपने 2 अटैम्प्ट दे दिए हैं या 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट दे दिए हैं UPSC में, आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है, या आप मेंस भी लिख रहे हैं, सपोज मैं कह रहा हूँ मेंस भी लिख रहे हो, मेंस भी आपका 31 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप 3 महीने अच्छे से एग्जाम को फोकस कीजिए। तो अगर आप ऑलरेडी कम से कम 2 प्रीलिम्स दे चुके हैं और आप इस जर्नी में हैं, आप 100% EPFO का एग्जाम लिखिए, मेरा ये मानना है। बिकॉज 26 का जो एग्जाम है वो आपका मई 26 में आएगा, और ये आपकी जर्नी नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी, और एक एग्जाम ओरिएंटेशन भी आपकी रहेगी, एग्जाम वे में आप थोड़ा पढ़ोगे, लेकिन 100% टाइम मत दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, अभी आप जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं वो प्रिपेयर कीजिए, आप 50% टाइम दीजिए EPFO को अक्टूबर तक, और नवंबर में 100% टाइम दे दीजिए। आप मान के चलिए कि भाई मेरे पास 1 महीना कम है, 1 महीना मेरा चला गया EPFO में, अभी 50% टाइम दीजिए, क्योंकि वैसे भी आप 100% टाइम नहीं देते हो UPSC सिविल सर्विस को, मुझे पता है। वैसे भी आप 15 घंटे तो नहीं पढ़ते हो अभी, 26 वाले जो बच्चे हैं अभी भी तो 5-6 घंटे पढ़ते हो ना, तो 5-6 घंटे और निकालो। 5-6 घंटे आप UPSC की प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज मत करो, ऑप्शनल करो, GS मेंस करो, जो करना है वो करो, लेकिन 5-6 घंटे एक्स्ट्रा निकालो। ये जो कॉम्प्लेसेंसी है, स्लो मोशन में पढ़ाई चल रही है, या दुख मनाया जा रहा है प्रीलिम्स ना निकलने का, जो भी चीज़ है वो सबको साइड रखो और पढ़ना शुरू करो। अच्छी जॉब है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कमिश्नर वर्ड लग जाएगा, घर वाले खुश हो जाएंगे, मन में शांति रहेगी कि चलो एक जॉब मिल गई, और फिर 26 का अटैम्प्ट दे देना, और 26 का अटैम्प्ट देके उसके बाद जॉब ज्वाइन करना आराम से, कोई नुकसान नहीं है। मतलब 26 वालों के लिए अगर आपने 2 अटैम्प्ट दे दिए हैं ऑलरेडी, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है UPSC सिविल सर्विस का, तब आप बिल्कुल मत दीजिए इस एग्जाम को। अगर आपने एक अटैम्प्ट दे दिया है और आपको लगता है कि मेंस आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है या आप कर लोगे, आपको जॉब की जरूरत है, तो आप ये जरूर दीजिए, ठीक है। तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं है आपके लिए, कोई मेजर नुकसान नहीं है। और ये मत सोचिए कि सर मैं तो लास्ट अटैम्प्ट UPSC का दे रहा हूं और मैं 26 में 100% देना चाहता हूं। भाई 100% का मतलब आप 15 घंटे तब भी नहीं पढ़ोगे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे पास आप डेली आकर के मिलते हो, मुझसे डेली बात करते हो, तो मुझे आपकी जर्नी का पता है। आप 15 घंटे तब भी नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो भाई 5-6 घंटे पढ़ो, सिविल सर्विस के लिए बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ो,
कम टाइम में रहेगा, ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फालतू की चीज़ें पढ़ोगे, फालतू के सोर्सेज आप इकट्ठा करोगे सिविल सर्विसेज के लिए, और उससे अच्छा है कि APFC की तैयारी करो, वर्थ है, कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा आपका, ठीक है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो वही आपके बल्ले बल्ले है, फिर तो आपके लिए अकाउंटेंसी केक वोक है, 15 क्वेश्चंस आपके पक्के हैं, IR में 5-6 क्वेश्चन, लेबर लॉ वाले 15 क्वेश्चन आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हैं, GS पॉलिटी और आपका इकोनॉमी और करंट अफेयर्स वगैरह और एप्टीट्यूड, मतलब आपके लिए तो ये एग्जाम बना है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ। ये जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, कॉमर्स ऑप्शनल लेते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आपके लिए बहुत सारे एग्जाम बने हुए हैं, EPFO हो गया, RBI हो गया, SEBI हो गया, तो आपको तो बैकअप ऑप्शन बेस्ट वाला है ये वाला, आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना। आपके लिए क्या करना है, सिर्फ 25% टाइम लगाना है अक्टूबर तक, ठीक है, यानी कि डेली 2 से 3 घंटे अकाउंटेंसी पढ़ो, लेबर लॉ पढ़ो, जनरल साइंस पढ़ो, जो एरिया आपका थोड़ा नया है वो एरिया पढ़ो, 2-3 घंटे, ज़्यादा नहीं, और नवंबर में 100% लगा दो, ठीक है। आपको इंग्लिश, क्वांट, जनरल साइंस ये ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एरिया ऑफ डिफिकल्टी आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है। अगर आप सिविल सर्विस बैकग्राउंड से नहीं हो तब आप 100% टाइम दोगे टिल नवंबर, ये इन नहीं है, टिल नवंबर है, ठीक है, तब तो आपको पूरा 4 महीने देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या ये पेपर डिफिकल्ट है, इज दिस पेपर डिफिकल्ट? सो आई ऑलवेज आंसर इन ए डिफरेंट वे। मैं कहता हूं भाई देखो, पेपर डिफिकल्ट इजी नहीं होता, कंपटीशन मेक्स इट डिफिकल्ट और इजी। आपके कंपटीशन में कौन बैठा हुआ है और वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसके अंदर कितनी आग है इस एग्जाम को क्लियर करने की। तो भाई आप इस एग्जाम को लाइटली मत लीजिएगा, या तो पूरे तरह से प्रिपेयर करो या बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर मत करो, बीच में मत रहना कि सर चलो दे के देख लेते हैं, दे के देखने के लिए मत करना इसको, क्योंकि कंपटीशन आसान नहीं है, दिस इज ओपन फॉर ऑल। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनको जॉब चाहिए, वो दिन रात पढ़ के और मतलब निकालते हैं इस एग्जाम को। तो अगर आपके अंदर वो एक कंपटीशन की स्पिरिट है कि भाई सिविल सर्विस भी मेरा चलेगा और ये भी मेरा कंपटीशन, मैं इसमें भी विन करूंगा, तो आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि भाई चलो अभी मींस 26 का पेपर बहुत दूर है तो कुछ बीच में ट्राई कर लेते हैं, ट्राई के लिए मत कीजिएगा। कंपटीशन अच्छा खासा है इसमें भी, क्योंकि कंपटीशन जो है ना वो हर जगह अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव बच्चे हर जगह अवेलेबल हैं, है ना। 500 बच्चे भी अगर अच्छा कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं तो बस वो सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए, फिर आपको क्यों जगह मिलेगी, समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम बैंकिंग वाले भी लिखेंगे, SSC वाले भी लिखेंगे, सिविल सर्विस वाले भी लिखेंगे, जो कोई गवर्नमेंट जॉब में परेशान है, अपने बॉस से परेशान है, टाइमिंग से परेशान है, पोस्टिंग से परेशान है, सैलरी उसको लगता है कि अच्छी नहीं है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके लिए ये एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी है कि चलो एग्जाम निकालो और ग्रुप ए में ज्वाइन कर लो। तो आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि गारंटीड है कि भैया सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये फ्री का एग्जाम है, फ्री का एग्जाम कुछ भी नहीं है, हर एग्जाम में अपना कॉम्पिटिशन होता है। तो पेपर इजी डिफिकल्ट वाली बात अलग होती है, लेकिन आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी ही पड़ेगी, और कट ऑफ डिपेंड करेगा कि बाकी लोगों के अंदर कितना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। अगर आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो तो कीजिए, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब है कि सिंसियरली प्रिपेयर करना है, अच्छे रिसोर्स से प्रिपेयर करना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, और अगले 4 महीने एक मिशन बना लो कि भैया पर्सनल लाइफ हो गई अब बाद में देखेंगे, और इस एग्जाम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, सेकंड प्रायोरिटी सिविल सर्विस को दे दो। यानी कि जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी 25-50 और 50-50 और 100, जो भी आपका बैकग्राउंड है, लेकिन एग्जाम को एग्जाम की तरह से डील करना पड़ेगा। दिस इज द हार्ड ट्रूथ आई वुड टू टेल यू। अदरवाइज क्या होगा कि सर आता तो था लेकिन 10 नंबर से रह गए सिविल सर्विस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सिंपल बात है कि आप या तो सिलेक्टेड हो या नॉन सिलेक्टेड हो, तो सिलेक्शन लेना है तो भैया वो एग्जाम कट ऑफ आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारी स्टडी सेशंस भी आ रहे हैं, ये अलग अलग हमारी फैकल्टीज सब लोग लेंगे जो भी एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट के, ठीक है, मैं भी रहूँगा उसमें, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा कोर्स भी है, ऑलरेडी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिसमें IR, लेबर लॉ और आपका कंप्यूटर, है ना, IR लेबर लॉ, IR मैंने लिया हुआ है, लेबर लॉ जयबा मैडम ने लिया हुआ है, शेखर सर ने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया है, और मैंने और अकाउंटेंसी निकिता मैडम ने लिया हुआ है, ठीक है। और हम 4 अगस्त से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, और सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो, IR आई विल टीच, ठीक है, मेरा क्रेडेंशियल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल,
अकाउंटेंसी में भी आई विल टीच, एंड प्लस नितिका मैडम के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मेरा बैकग्राउंड आपको पता ही है। लेबर लॉज ज़ैबा मैडम, प्रशांत सर जिनका लॉ बैकग्राउंड है, यूपीएससी पढ़ाते हैं। इंग्लिश श्रीजेश सर जो कि इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल की फैकल्टी हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशन शेखर सर जो कि बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं, और ये हिस्ट्री भी आपको हेल्प करेंगे, हिस्ट्री में भी, बिकॉज उनका हिस्ट्री ऑप्शनल के टीचर भी हैं वो, ठीक है। तो उनका ड्यूअल एडवांटेज लेना है आपको, हिस्ट्री प्लस कंप्यूटर साइंस। हमारे जो पर्पस है वो मैं आपको सही बताऊं तो हम लोग इसको बहुत मास स्केल पे नहीं करते हैं, ना ही हम इसमें बहुत ज़्यादा आउटरीच प्रमोशन मार्केटिंग करते हैं, लेकिन हमारा जो खुद का स्टूडेंट बेस है, मुझे लगता है कि यार वो स्टूडेंट बेस जो है ना उसको हम सही से गाइड करें, ठीक है। और जो हमारे टच में लोग हैं, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, उनको हम डायरेक्टली एड्रेस करें। और लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द ओल्ड राजेंद्र नगर दे कम टू अस कि सर आप अकाउंटेंसी ऑप्शनल पढ़ाते हो, आपके यहाँ पे इंग्लिश ऑप्शनल भी है, तो सर आप क्यों नहीं कराते ईपीएफओ, ठीक है। तो हम लोग वैसे कोर यूपीएससी के हम लोग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन ओनली ईपीएफओ को हम इसलिए टारगेट करते हैं कि जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग भी इसको प्रिपेयर कर सकें अगर वो करना चाहते हैं तो, और जो लोग ओआरएन में और राजेंद्र नगर में या सिविल सर्विसेज के जो हमारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो लोग भी चाहते हैं कि उनको हमारी एक्सपर्टीज़ का बेनिफिट मिले, तो वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो फैकल्टी पैनल है वो यूपीएससी वाले फैकल्टी है। हम लोग ऐसा नहीं है कि भाई एसएससी वाले टीचर को उठाया और 500 रुपये घंटा दिया और उनसे पढ़वा दिया। मैं आपको हार्ड ट्रूथ बता रहा हूँ, हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, करेंगे तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारी क्लासेस का डिटेल है जो आपको मिल जाएंगी। अभी 80 घंटे के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, और हम ये क्लासेस रिपीट करेंगे लाइव क्लासेस के थ्रू, 23 पैटर्न पे वापस से रिपीट करेंगे। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा बहुत अच्छा क्वालिटी का, वापस से मैं पूरा रिवैम्प करा करके, वापस से पीवाईक्यू से लिंक करा करके पूरा मैं कर रहा हूँ। एंड आई कैन शो यू, मैं आपको हमारे मटेरियल में से क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हुए हैं 23 में। ओल्ड राजेंद्र नगर में 23 में सबसे पॉपुलर मटेरियल डायडी में आईएएस का था, सारे बुक स्टोर्स उसी को बेच रहे थे, सारे स्टूडेंट्स उसी को पढ़ रहे थे, लाखों बुक हमारी बुक की थी, बुक स्टोर्स वालों ने बेची थी, मतलब हमने नहीं बेची थी, ठीक है। तो और वहाँ से क्वेश्चंस भी आए थे, मैं अगर आप चाहोगे तो आई कैन शेयर दैट एनालिसिस विद यू कि कैसे हमारे बुक से क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हुए थे। 23 की जो बुक्स हैं वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहे इमेज रनर पे चले जाइए, आप अतुल फोटोस्टेट पे चले जाइए, आप कुमार बुक सेंटर पे चले जाइए, स्पार्कलर पे चले जाइए, हमारी 23 की बुक्स आपको मिल जाएंगी। और अपने पेपर को एनालाइज कीजिए, कंपेयर कीजिए, और वो एनालिसिस मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि कैसे डायरेक्टली हमारे बुक से क्वेश्चंस आए थे। लेबर लॉ, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्पेशली ये स्पेशल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। सो आपको मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, कोई टाइम पास वाली बात नहीं है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम आपके लिए डेवलप कर रहे हैं, टोटल 5000 MCQs प्लस आपको देंगे, फुल मॉक टेस्ट भी कराएंगे, पीवाईक्यू सोल्व करके देंगे, और बाकी रेगुलरली आपसे साथ मिलते रहेंगे। हमारी छोटी सी फीस है 2499, सो दैट कि हम अपने खर्चे निकाल सकें बस, ठीक है। कोई हमारा प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में कोई उतना क्वांटिटी मनी का उतना साइज नहीं है। हमारे जो ऑप्शनल के कोर्सेज होते हैं वो 50,000 60,000 के होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक तरह से बस अपनी कॉस्ट निकल जाए वो हम चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स इंस्टेंटली अवेलेबल हैं। मैं कहूँगा कि आप फटाफट से ज्वाइन करो, लेबर लो तो कम से कम कवर करो, ठीक है, अकाउंटेंसी भी आप कवर करो। लाइव क्लासेस 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, इसका शेड्यूल हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। मीडियम विल बी इंग्लिश प्लस हिंदी। इफ यू आर फ्रॉम द नॉन हिंदी बैकग्राउंड, यू कैन रिलाई ऑन अस, वी विल ensure that you do not miss out anything. We will use Hindi also, but do not mean कि you will miss out something, because we will repeat the same thing, ठीक है। ये देखिए, ये सब लेक्चर्स अवेलेबल हैं अकाउंटिंग के, ये नितिका मैडम ने लिए हुए हैं, सीए हैं मैडम, ठीक है। आईआर ये लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं, और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं इसमें, कुछ ही स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाले हैं। ज़बा मैडम ने सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं लेबर लॉ पे, ये इंस्टेंटली अवेलेबल हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग आवर टेलीग्राम चैनल, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट, 9811599537, दिस इज 537, 9811599537, ये एक डिजिट यहाँ पे मिसिंग है, 99537 ये आपका नंबर है, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड अबाउट द स्ट्रेटजी, ठीक है। नाउ आई विल टेक अप योर क्वेश्चन, एंड इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो शो यू द 2023 पैटर्न, इट विल टेक 15 minutes. And I will also show you 23 books and how they have directly addressed the demand of the 23 paper.
ठीक है जी. सो नाउ लेट मी सी योर क्वेश्चंस. म्यूट करने के लिए भाई किसने अनम्यूट किया हुआ है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कौन है? आदित्य सौरभ जी, म्यूट कर लीजिए भाई. आपको म्यूट कर दिया मैंने. ओके. और कौन है? वर्षा दलाल, आपने कुछ इमेज भेजा है. नेहा, हेलो सर, मेरे को आपसे बात करनी है. व्हेनेवर यू गेट ए टाइम प्लीज़ लेट मी नो. नेहा, क्या बात करनी है आपको? कुछ एग्जाम वाली चीज़ तो यहाँ पर आप पूछ लीजिए. AO APFC का फॉर्म एक साथ कंबाइंड फिल करना है या डिफरेंट, वो तो देखिए आपको जाके चेक करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. कार्तिकेय, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम पर्सन. ओहो, अरे यार सॉरी. ओके, नो प्रॉब्लम. वी विल शेयर द रिकॉर्डेड सेशन ऑन द यूट्यूब चैनल. ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी, आई कुड नॉट सी. ओके, देखिए आपको जिसको भी मुझसे बात करनी है ना, यू कैन सेव माई कॉन्टैक्ट नंबर. मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूं. ओके, दिस इज माई टीम्स नंबर 999537. Okay, sorry. Let me open the notepad. हाँ जी. So I hope you have understood the exam requirement and all. आपकी जो भी क्वेश्चन है प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. CA ऋषभ जैन, सर इज प्रिंटेड मटेरियल विल बी अवेलेबल? यस, विल बी अवेलेबल. ठीक है, आफ्टर सम टाइम. बैच विल स्टार्ट, लाइव क्लासेस विल स्टार्ट ऑन 4th June. और रिकॉर्डेड आप चाहते हैं तो दीज आर इंस्टेंटली अवेलेबल. इंस्टेंटली आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज माई नंबर इफ यू हैव एनी issues, but only academic thing. ठीक है, you can WhatsApp me, don't make a phone call, and please wait for my response because I am in classes or somewhere. तो अपनी एकेडमिक क्वेरीज के लिए आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते, मैसेज कर सकते हैं. मैसेज करेंगे ओनली. अगर आपको उनसे फ़ोन पे बात करनी होगी, यू हैव टू फिक्स अ टाइम, अदरवाइज आई डू नॉट पिक द फ़ोन डायरेक्टली. दिस इज़ माई टीम्स नंबर. ये हमारा ऑफिस का नंबर है. आप यहाँ पर कोर्स इंक्वायरी कर सकते हैं, कोर्स बाइंग, और डायरेक्टली यू कैन बाय द कोर्स डायरेक्टली ऑल्सो फ्रॉम द लिंक. कोर्स आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक दैट वी विल पोस्ट ऑन टेलीग्राम चैनल. ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हम जो लिंक पोस्ट करेंगे आप उसके थ्रू डायरेक्टली कोर्स को बाय कर सकते हैं. ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन विल कीप कमिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पे आई एम गोइंग टू पोस्ट 2023 PYQs मैं पोस्ट करूंगा, और डायरेक्ट हिट्स फ्रॉम डायडेमी मटेरियल वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा कि डायडेमी मटेरियल से 2023 में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो. सर स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज एनफ है या आपके कोर्सेज भी लेना चाहिए फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट? आप डिपेंड करता है, इंग्लिश वगैरह में यू कैन टेक माई हेल्प. ठीक है, अदरवाइज आप सेल्फ कर लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए. कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स ऑप्शनल आपका है. ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्पीक टू मी अदरवाइज सेपरेटली. बट अभी आप 12th क्लास की NCERT पढ़ लीजिए अकाउंटेंसी की, और लेबर लॉ की हमारी बुक पढ़ लीजिएगा. इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा. आप अगर स्टडी मटेरियल सोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके, प्लस टेस्ट सीरीज. ठीक है, राज सिंह, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ SSC, हाउ मच टाइम आई हैव टू गिव टू EPFO? देखिए डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, बट आई विल सजेस्ट दैट यू शुड गिव 5 to 6 hours डेली मिनिमम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स.
and later on you can give 100% time. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, आप कॉमर्स से हैं, नॉन कॉमर्स से हैं, कॉमर्स से हैं तो यू कैन गिव लेस टाइम, अदरवाइज यू हैव टू गिव मोर टाइम. अक्षत प्लीज आस्क द क्वेश्चन ऑन द चैट में क्वेश्चंस को आप टाइप कर दीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं होस्ट वाली आईडी में आप टाइप कीजिएगा. ठीक है, अक्षत, एंड देयर इज वन मोर आईडी, एच के नाम से एक आईडी और भी है. ओके, प्लीज टाइप योर क्वेरी इन द डायडी में. आइए, जो होस्ट वाला है ना आईडी, वहां पर आप शेयर कीजिएगा अपना होस्ट के अंदर. ठीक है, ओके जी नेहा, आई विल रिप्लाई, डोंट वरी, आप करेंगे तो देन नो इश्यूज. सर, आई डोंट नो इफ यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर. सर, इन द स्लाइड प्लीज, आई सा इट्स इंग्लिश प्लस हिंदी. Are the classes taught in Hindi also? When my friend inquired, it was said it's in English. See, actually, we will discuss the things in English and Hindi both, but it is primarily English. Like we can say 70-80% is English, only 20% is Hindi. Like I have been taking this session today. Okay, that is our strategy. Okay जी नेहा, okay. Akshat, you have some question? Ganga, okay, welcome. Aditya Saurav, sir, accounting concepts are static or dynamic? Static. Accounting is very static, मतलब easy है, जैसे कह सकते हैं. Accounting is easy. अच्छे से एनसीईआरटी कर लीजिए, फिर हमारी बुक कर लीजिएगा, you will be able to solve. अगर आपके अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, then you should attend the classes also. ठीक है? Okay everyone, so let's wind up the session. Then we will take subject wise session also later on. Subject wise session भी हम लेंगे आगे जा करके. आप attend करते रहिए sessions को, और कुछ भी queries होंगी तो you can address to us. You can contact us. Okay. Do we have to look other material like NCERT or rely on? अगर आप हमसे ले रहे हैं तो आप हमसे ही कर सकते हैं, नो इश्यूज. ठीक है. ऋषभ, विल प्रिंटेड मटेरियल बी अवेलेबल इन द कोर्स? हाँ, वो हम दो कोर्स के ऑप्शन देंगे ऋषभ, एक होगा विद प्रिंटेड मटेरियल, दूसरा होगा विदाउट प्रिंटेड मटेरियल. ठीक है, तो अभी जो हमारा सेल हो रहा है वो विद आउट हो रहा है, और विद वाला भी हम लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा अपडेटेड वाला, वैसे ही हम प्रिंटेड वाला ऑप्शन भी अनाउंस कर देंगे. ठीक है, और आप अगर एग्जिस्टिंग वाला भी बाय कर सकते हैं तो वो भी बाय कर लीजिए, बाद में फिर आपको हम सेपरेटली भी प्रिंटेड मटेरियल दे देंगे, कोई इशू नहीं है. ठीक है. Okay, so we will printed material will be available after few days. Okay, you can buy separately also, and you can buy as part of the course also. Okay, we will be launching 2 courses where one is without printed material and one is with printed material. Okay. Sir, Akshat Gad ने क्वेश्चन पूछा है, सर इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस लाइक अवेलेबल इंग्लिश कंप्यूटर? सेपरेटली तो अवेलेबल नहीं होती हैं, बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट पीपल डोंट सब्सक्राइब सेपरेटली. ठीक है, पूरा सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, स्पेशल सब्जेक्ट का एक ही वो होगा कंबाइंड. ठीक है, क्लासेस विल बी इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मिक्स होगा दोनों का, इवनिंग में भी होंगी, जैसे मेरी क्लासेस इवनिंग में होंगी, सम अदर फैकल्टी माइट हैव द क्लास इन द मॉर्निंग ऑल्सो, इट विल बी मिक्स, एंड इट विल बी लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोथ. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड नेहा. Okay, thank you everyone. Please keep checking the Telegram channel. I keep posting the relevant things in the Telegram channel also. Okay, thank you very much.